Bismillahirrahmanirrahim. This is the third lecture on DC to DC converters. The topic is buck converter. Introduction to buck converter. This converter can be used to generate an output voltage lower than the input source voltage. This converter is also called a step-down converter. In this figure, the circuit diagram of the buck converter is given. The input voltage is represented by Vn. The load or the output voltage is denoted by V0. This circuit diagram of the buck converter consists of a control switch Q, an energy storing element inductor, capacitor, and a freewheeling diode, which is represented by D. We have discussed earlier that a MOSFET can be used instead of this control switch Q. The operation of this circuit can be explained in two sub-intervals. Operation of buck converter. The operation of the buck converter can be explained in two sub-intervals. The first sub-interval starts when the switch Q is closed. During this sub-interval, the diode is reverse biased and the inductor current is provided by the source. This current increases linearly, which also passes through the load. During this sub-interval, the inductor voltage, which is represented by VL, can be written as Vn minus V0. This relation can be written by applying KVL in the circuit. This inductor voltage remains constant during the first sub-interval. The second sub-interval starts when the switch Q is opened. During this sub-interval, the diode becomes forward biased and carry the inductor current through the load. The current is now decreasing linearly, and when the current through inductor has fallen to a minimum value represented by IL minimum, the switch Q is closed again and the first sub-interval gets started again. As the inductor current is not returning to zero during the second sub-interval, as a result the load current is also present there. This mode of operation of the buck converter is called continuous conduction mode. During this sub-interval, the inductor voltage can be written as minus V0. V0 is the converter's output voltage. The inductor voltage during this sub-interval also remains constant. During this sub-interval, as the switch Q is not connected, so there is no current provided by the source. The load current or the output current, which is represented by I0, flows during both the sub-intervals. The operation of the buck converter can be explained in these waveforms in the continuous conduction mode. VL, this is the voltage across inductor. ID is the current through freewheeling diode. This is the input current or the source current, and this is the output current or the load current. This is the duration during which switch Q is on. This duration or this time is represented by T on. During this duration, the inductor voltage is equals to the input voltage minus V0 as explained earlier. And when the switch Q is off, this duration is represented by T off. During this interval, the inductor voltage is equals to minus V0. Similarly, when the switch Q is on
during the first subinterval, the diode is reverse biased and the current through diode is 0. And when the switch Q is off, the diode becomes forward bias, and this waveform, this line, this is represented the current through diode. Similarly, the input current, this is only present when the switch Q is on. When the switch Q is off, there is no current provided by the source. So the input current during this second subinterval is 0, while the load current flows during both the subinterval. When the switch Q is on, the current through inductor is increasing linearly, which is also passing through the load. When the switch Q is off, the current through inductor decreases linearly, and which is also flowing through the load. In this case, in the case of the buck converter, the inductor current is equal to the output current of the converter. Next is the discontinuous conduction mode, abbreviated as DCM. For the lower values of duty cycle, and especially with low inductance, the load current may fall to 0 during each cycle when the switch Q is off. This current again builds from 0 when the switch Q is closed in the next cycle. The load current is said to be discontinuous and the converter is said to be operating in the discontinuous conduction mode or DCM. Such an operation is undesirable. In order to avoid such an undesirable operation, a suitable value of inductance called critical inductance is required. This continuous current is obtained by setting the minimum value of the inductor current equals to 0 and derive an expression for the critical inductance, which will not allow the load current to be 0 at the end of the second half interval. In this slide, the waveforms for the discontinuous conduction mode of the buck converter are shown. This is the same diode current, this is the input or the source current, and this is the output or the load current. As described previously, that during the second subinterval, when the switch Q is off, the load current should be continuous and it should not be allowed to become 0. We can see during the second subinterval when the switch Q is off. In this waveform, the load current is just becoming 0, but still we can say that the converter is operating in the continuous conduction mode. While in the second waveform, represented by the dotted lines, the load current has fallen to 0 before the end of the second half interval. In this case, we say that the converter is operating in the discontinuous conduction mode, which is not a desirable operation of the converter. And as described previously, that this operation can be avoided by proper design of the inductance value called critical inductance. Assumptions made for the converter analysis. अगर हम किसी भी DC to DC कन्वर्टर को एनालाइज करना चाहें तो इस स्लाइड में हमारे पास कुछ जनरल assumptions है. For example, all the circuit elements are ideal. DC to DC कन्वर्टर में हम जो भी सर्किट एलिमेंट्स यूज करेंगे, we will assume that these circuit elements are ideal and there are no losses in the converter. अब अगर किसी भी DC to DC कन्वर्टर की बात कर ले तो
Mainly, the losses are of two types: the conduction losses and the switching losses. The conduction losses occur when the current flows through the circuit elements. To consider that there are no conduction losses, we ignore the internal resistance of all the circuit elements. Similarly, we also neglect the forward voltage drops across all the switches. To ignore switching losses, we assume that the switching is instant, that is, extremely fast response of all the switches. Analysis of बक कन्वर्टर. अगर हम किसी भी डीसी टू डीसी कन्वर्टर को एनालाइज करना चाहें तो उसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डेवलप कर सकते हैं, और अगर इसी प्रोसीजर को फिर हम फॉलो करें तो हम किसी भी कन्वर्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इन दोनों के दरमियान रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह कन्वर्टर्स में जो स्टेडी स्टेट करंट्स होंगे, खासकर जो इंडक्टर करंट है और आउटपुट करंट है, इन दोनों के दरमियान हम एक्सप्रेशन या रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा किसी भी कन्वर्टर में, उसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? उस कन्वर्टर के सर्किट डायग्राम को प्रॉपरली लेबल करें। अब mark the polarities, label the circuit elements, especially inductor and output voltage with their corresponding voltages. Label these circuit elements with their corresponding currents and assign directions to these currents. IC, IL and I0 are the capacitor, inductor and output currents respectively. अब इस सर्किट डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो इंडक्टर के अक्रॉस हमने पोलरिटीज़ मार्क की और इंडक्टर वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया VL से। इसी तरह जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमने पोलरिटीज़ मार्क की और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल v0 से। इसी तरह सर्किट एलिमेंट्स में जो करंट्स फ्लो होंगे, और हम खासकर इंटरेस्टेड है कैपेसिटर में, लोड में और इंडक्टर में, इन तीनों सर्किट एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया। इंडक्टर करंट को रिप्रेजेंट किया IL से, कैपेसिटर करंट को IC से, जबकि लोड करंट को हमने रिप्रेजेंट किए I0 से। इन तीनों करंट्स को हमने डायरेक्शंस असाइन की। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द लोड करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कैपेसिटर करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्टर करंट। इन तीनों करंट्स को हम कोई भी डायरेक्शन हम असाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो पोलरिटीज़ है इंडक्टर के अक्रॉस या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये पोलरिटीज़ हम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा अगर हम पोलरिटीज़ मार्क कर लें या अगर इस तरह करंट को एक मर्तबा हम डायरेक्शंस असाइन कर लें, फिर ड्यूरिंग एनालिसिस न हम इन पोलरिटीज़ को चेंज करेंगे और न इन करंट्स की डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। That is why be consistent with the defined polarities and the assigned directions of current during each subinterval. Now, the second step of the general procedure is to draw the equivalent circuit for each subinterval and write the relations. Now, each subinterval means that we will analyze the circuit in two subinterval. अब जो फर्स्ट सब इंटरवल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है सब इंटरवल 1 से, एंड ड्यूरिंग दिस सब इंटरवल द स्विच Q इज क्लोज्ड। जो सेकंड सब इंटरवल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया सब इंटरवल 2 से, एंड ड्यूरिंग दिस सब इंटरवल द स्विच Q इज ओपन। इस सब इंटरवल का जो ड्यूरेशन है दिस इज फ्रॉम 0 टू dt। इस सब इंटरवल का जो ड्यूरेशन है दिस इज फ्रॉम dt अप टू t।
where D is the duty cycle and T is the time period of the switching signal applied at the gate of the control switch. And next is to write the relations. तो रिलेशन हम किसके लिए लिखेंगे? इंडक्टर वोल्टेज के लिए, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है VL से, उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, और कैपेसिटर करंट के लिए जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है IC से। अब चूंकि हमारे पास दो सब इंटरवल्स हैं, किसी भी DC टू DC कन्वर्टर के लिए CCM मोड में दो सब इंटरवल्स होंगे। इस वजह से अगर हम इंडक्टर वोल्टेज के लिए रिलेशन लिखना चाहें तो हम दो एक्सप्रेशन या दो रिलेशन लिखेंगे, एक सब इंटरवल 1 के लिए और एक सब इंटरवल नंबर 2 के लिए। इसी तरह अगर हम कैपेसिटर करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो दो एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक सब इंटरवल 1 के लिए और एक सब इंटरवल 2 के लिए। लेकिन इस एनालिसिस के दौरान सब इंटरवल 1 और सब इंटरवल 2 दोनों सर्किट्स में जो हमने स्टेप नंबर 1 में जो इंडक्टर वोल्टेज की पोलैरिटीज मार्क की है, दोनों सब इंटरवल में जो दोनों इक्विवेलेंट सर्किट्स बनेंगे वही पोलैरिटीज हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह जो कैपेसिटर करंट की डायरेक्शन होगी या इवन लोड करंट की या इंडक्टर करंट की, दोनों सब इंटरवल्स के दौरान जो इक्विवेलेंट सर्किट्स हम ड्रॉ करेंगे उनमें हम करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अब अगर किसी सर्किट में एक इंडक्टर होगा तो हम उसके लिए दो एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक सब इंटरवल 1 के लिए, एक सब इंटरवल 2 के लिए। अगर किसी सर्किट में हमारे पास दो इंडक्टर होंगे तो जो वोल्टेज के एक्सप्रेशन लिखेंगे इंडक्टर वोल्टेज के लिए, तो फिर वो हमारे पास चार एक्सप्रेशंस बनेंगे। इसी तरह अगर किसी सर्किट में हमारे पास तीन इंडक्टर्स होंगे तो जो हम वोल्टेज के एक्सप्रेशंस लिखेंगे फिर वो 6 एक्सप्रेशंस आएंगी। ये रूल हमारे पास जो कैपेसिटर करंट है उस पर भी एप्लीकेबल है। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट्स है हमारे पास दोनों सब इंटरवल्स के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इस स्लाइड में हमारे पास सब इंटरवल 1 के लिए जो बक कन्वर्टर का इक्विवेलेंट सर्किट गिवन है वो हमने ड्रॉ किया है। ड्यूरिंग दिस सब इंटरवल द स्विच Q इज क्लोज और डायोड हमारे पास रिवर्स बायस है। इस वजह से डायोड को मैंने रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन से कि इस सब इंटरवल 1 के दौरान डायोड इज नॉट कंडक्टिंग। वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शंस हमारे पास वही है जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में असाइन किए थे। Now we will have to write the expressions for the inductor voltage and the capacitor current. अगर व्हील के लिए मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं सर्किट में KVL लगा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर करंट को उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं KCL अप्लाई करके एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अब व्हील के लिए एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने डॉटेड जो ब्लू लाइन है, ठीक है, ये मैंने एक क्लोज पाथ या लूप सेलेक्ट किया है। अब अगर इसी क्लोज पाथ में अगर मैं KVL अप्लाई कर लूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, जो ब्लू पाथ मैंने सेलेक्ट किया है, इस दौरान इंडक्टर वोल्टेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है VL ऑन से, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दिस इज ड्यूरिंग सब इंटरवल 1 और इस दौरान स्विच Q चूंकि ऑन है इस वजह से इंडक्टर वोल्टेज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VL ऑन से। दिस इज इक्वल्स टू VN माइनस V0। इस सर्किट में इस रिलेशन में, ठीक है, ये जो V0 है दिस इज दी आउटपुट वोल्टेज और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल V0 से, क्योंकि ये तो हमारे पास DC है लेकिन फेवर DC नहीं है। इसी तरह इस दौरान जो करंट के लिए अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ कैपेसिटर करंट के लिए तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया IC ऑन से, और ये जो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ इस दौरान
ये इसी नोड पे ये जो ठीक है, मैंने एक डॉटेड लाइन भी दी है येलो कलर में, इसी नोड पे मैं केसीएल अप्लाई कर सकता हूँ। अब अगर इस नोड को देखेंगे तो जो इंडक्टर करंट है दिस इज द एंटरिंग करंट, और जो कैपेसिटर करंट और आउटपुट करंट है दीज टू आर लीविंग द नोड। तो अगर इस नोड पे अगर हम केसीएल अप्लाई कर ले तो हमारे पास से एक्सप्रेशन बनेगा, आई सी ऑन दिस विल बी इक्वल्स टू आई एल माइनस आई नॉट। इस दौरान जो लोड करंट है उसको भी मैंने स्मॉल आई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, और जो इंडक्टर करंट है उसको भी मैंने स्मॉल आई एल से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह सब इंटरनल 1 के दौरान हमने जो इंडक्टर वोल्टेज है उसके लिए भी एक्सप्रेशन लिखा। इस दौरान इंडक्टर वोल्टेज को मैंने रिप्रेजेंट किया वी एल ऑन से, और जो कैपेसिटर करंट है इस सब इंटरवल 1 के दौरान उसको मैंने रिप्रेजेंट किया आई सी ऑन से, और उसके लिए भी मैंने एक्सप्रेशन लिख लिया। नेक्स्ट इज द सब इंटरवल 2। इस स्लाइड में हमारे पास सब इंटरवल 2 के लिए बक कन्वर्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो गिवन है। ड्यूरिंग दिस सब इंटरवल 2 the switch Q is open or this switch Q is off। इस वजह से इस डायग्राम में इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन से, और डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा। नाउ वी विल हैव टू राइट द इक्वेशंस फॉर द इंडक्टर वोल्टेज VL एंड द कैपेसिटर करंट IC। अब चूंकि सब इंटरवल 2 के दौरान जो कंट्रोल स्विच Q ऑफ है, इस वजह से VL के लिए जो एक्सप्रेशन लिखूंगा तो VL को मैंने रिप्रेजेंट किए VL ऑफ से, और जो कैपेसिटर करंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है IC ऑफ से। VL के एक्सप्रेशन या रिलेशन के लिए जो मैंने क्लोज पाथ या लूप लिया है उसको मैंने इस सर्किट में रिप्रेजेंट किया है एक ब्लू डॉटेड लाइन से। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर VL ऑफ। अगर इस क्लोज लूप में मैं KVL अप्लाई कर लूँ तो VL ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट। इसी तरह अगर IC ऑफ के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस नोट पे मैं यहाँ पे KCL अप्लाई कर सकता हूँ। IC ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू IL माइनस आई नॉट ड्यूरिंग दी सेकंड सब इंटरवल। तो हमारे पास सब इंटरवल 2 में जो दो एक्सप्रेशन थे, एक इंडक्टर वोल्टेज के लिए ये भी हम लिख चुके हैं, और जो कैपेसिटर करंट के लिए जो एक्सप्रेशन है ये भी हम सेकंड इंटरवल के लिए लिख चुके हैं। स्टेप नंबर 3 इज टू अप्लाई द स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन। इस स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़ चुके थे कि नॉर्मली जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होगा उसकी जो आउटपुट वोल्टेज और करंट है वो फेवर डीसी नहीं है। स्विचिंग की वजह से हमारे पास आउटपुट पे कुछ रिपल्स भी होंगे, करंट में भी और वोल्टेज में भी। अगर उन रिपल्स को हम इग्नोर कर ले तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है या जो करंट है वो हमारे पास फेवर डीसी होंगे। तो इस वजह से जो स्टेप नंबर 2 में सब इंटरवल 1 के लिए और सब इंटरवल 2 के लिए जो इंडक्टर की रिलेशंस हम लिख चुके थे और कैपेसिटर करंट की रिलेशंस हम लिख चुके थे, उन रिलेशंस में हम स्मॉल वी नॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल वी नॉट से, स्मॉल आई नॉट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कैपिटल आई नॉट से, और स्मॉल आई एल को हम रिप्लेस कर लेंगे कैपिटल आई एल से। तो हमारे पास जो सब इंटरवल 1 और सब इंटरवल 2 की जो एक्सप्रेशंस थी इंडक्टर वोल्टेज के लिए और कैपेसिटर करंट के लिए, वो हमारे पास कुछ यूँ बनेंगी। वी एल ऑन दिस विल बी इक्वल्स टू वी एन माइनस कैपिटल वी नॉट, और सब इंटरवल 2 के लिए वी एल ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट। इसी तरह आई सी ऑन दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल आई एल माइनस आई नॉट, and IC of this is equal to capital IL minus I naught.
Now step number 4, apply the principle of inductor volt second balance to the inductor voltage equations. अब पहले हम डिराइव कर चुके थे कि जो इंडक्टर का जो वोल्ट सेकंड बैलेंस है, इसको हम जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंडक्टर वोल्टेज under steady state condition, this will be equals to VL on multiplied by T on plus VL off multiplied by T off. This should be equals to 0. तो इस एक्सप्रेशन में VL on की जगह हम ये रिलेशन पुट कर लेंगे और VL off की जगह ये रिलेशन हम पुट कर लेंगे, तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब अगर इस एक्सप्रेशन में मज़ीद अगर टी ऑन की जगह हम डी टी पुट कर लें और टी ऑफ की जगह अगर हम डी डैश टी पुट कर लें, क्योंकि टी ऑन दिस इज इक्वल टू डी टी एंड टी ऑफ दिस इज इक्वल टू डी डैश टी। और अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें वी नॉट के लिए, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वी नॉट विल बी इक्वल टू डी वी एन। V naught, this is the output voltage of the buck converter. Vn, this is the source voltage, and D is the duty cycle. Next is plotting M of t against D. D, this is called duty cycle. जो M of t है, this is called the voltage conversion ratio. अब पिछली स्लाइड पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, V naught was equals to dVn for the buck converter. अब इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ कि V naught डिवाइडेड बाई Vn दिस इज इक्वल्स टू D। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज जो Vn है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको हम कहते हैं वोल्टेज कन्वर्जन रेशो। और बक कन्वर्टर के केस में ये जो वोल्टेज कन्वर्जन रेशो है दिस इज इक्वल्स टू D। हर एक कन्वर्टर के लिए वोल्टेज कन्वर्जन रेशो ये मुख्तलिफ होगी। मसलन बूस्ट कन्वर्टर के केस में वोल्टेज कन्वर्जन रेशो विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस डी। ठीक है, ये बाद में हम डिराइव कर लेंगे, लेकिन बक कन्वर्टर के केस में वोल्टेज कन्वर्जन रेशो दिस इज इक्वल्स टू डी। अब ये जो फिगर गिवन है इसमें हमारे पास एम ऑफ डी और डी इन दोनों को हमने प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे हमने डी को प्लॉट किया है, जबकि वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज कन्वर्जन रेशो को प्लॉट किया है। डी की हमारे पास रेंज फ्रॉम 0 to 1 है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली अगर हम वोल्टेज कन्वर्जन रेशो को प्लॉट कर ले तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगी दैट इज़ 1, विच करस्पॉन्ड्स टू दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी। इस ग्राफ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डी की वैल्यू बढ़ाने से वोल्टेज कन्वर्जन रेशो की वैल्यू लीनियरली हमारे पास इंक्रीज हो रही है। स्टेप नंबर 5, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर चार्ज बैलेंस टू द कैपेसिटर करंट इक्वेशंस। इस कैपेसिटर चार्ज बैलेंस से रिलेटेड हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में पढ़ चुके थे, और इस प्रिंसिपल का जो सिंपल फॉर्म था वो ये था कि आई सी एवरेज दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इस केस में अप्लाई करेंगे तो आई सी ऑन के लिए हमारे पास से एक्सप्रेशन आया था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टी ऑन से। इसी तरह आई सी ऑफ के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टी ऑफ से इक्वल्स टू 0। तो जो एक्सप्रेशन आएगा आई एल दिस विल बी इक्वल्स टू आई नॉट। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 6, ड्रा द इंडक्टर करंट वेवफॉर्म टू कैलकुलेट रिपल इन द इंडक्टर करंट। अब इंडक्टर करंट में जो रिपल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल आई एल से, वेयर दिस डेल आई एल दिस इज द पीक टू एवरेज रिपल करंट।
अगली स्लाइड पे जब हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पीक टू एवरेज रिपल करंट का मतलब क्या है। अब चूंकि पीक करंट इंडक्टर के साथ साथ जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कन्वर्टर में कनेक्टेड होंगी उनमें से भी ये पीक करंट फ्लो होगा। इस वजह से the knowledge of this peak current is necessary when specifying the ratings of these devices। इस स्लाइड पे हमने इंडक्टर करंट IL को प्लॉट किया है। VSW is the switch voltage which is applied at the gate terminal of the control switch Q। जितनी ड्यूरेशन के लिए हम इस कंट्रोल स्विच को ऑन रखना चाहेंगे उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑन से। जितनी ड्यूरेशन के लिए हम इस कंट्रोल स्विच को ऑफ करना चाहेंगे उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी ऑफ से। ऑन रखने के लिए हम इस कंट्रोल स्विच के गेट पे हाई पल्स देंगे, जबकि ऑफ रखने के लिए हम इसके गेट पे लो पल्स देंगे, वेयर द टाइम पीरियड इज फ्रॉम 0 टू टी। अगरचे ये इंडक्टर करंट हमारे पास डीसी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको स्मॉल IL से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अगर इसकी वेवफॉर्म को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट सब इंटरवल इसकी वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो रही है एंड ड्यूरिंग दी सेकंड सब इंटरवल इसकी वैल्यू लीनियरली डिक्रीज हो रही है। चूँकि इसकी वैल्यू हमारे पास एक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इस वजह इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल IL से। अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन इस इंडक्टर करंट की वैल्यू मिनिमम से स्टार्ट हो रही है। दिस इज एट टाइम t इक्वल्स टू 0, फिर ये इंक्रीज हो रही है एंड एट टाइम t इक्वल्स टू dt इस इंडक्टर करंट की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है IL मैक्स से। फिर फ्रॉम dt अप टू t इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब अगर इस इंडक्टर करंट की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को अगर देखेंगे हम, तो ओवर वन स्विचिंग पीरियड दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। इस वजह से हम कहते हैं कि द नेट चेंज इन इंडक्टर करंट ओवर वन स्विचिंग पीरियड इज 0। द DC component of this inductor current is represented by capital IL। और इस वेवफॉर्म में हमारे पास हमने इसको प्लॉट किया है रेड डॉटेड लाइन से। इस DC कंपोनेंट या एवरेज इंडक्टर करंट से इस मैक्सिमम करंट तक, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय del IL which is called the peak to average inductor ripple current। अगर इस इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म को हम लोग ऑब्जर्व कर ले तो दिस वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट द एवरेज इंडक्टर करंट IL। इस वजह से इस DC या एवरेज इंडक्टर करंट से इस मिनिमम इंडक्टर करंट तक इसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया है del IL से, which is the average to minimum inductor ripple current। बास बॉक्स में इसको पीक टू पीक रिपल करंट कहते हैं और एज ए होल इसको रिप्रेजेंट करते हैं del IL से। नाउ फ्रॉम 0 टू dt अगर हम देखेंगे तो ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल इंडक्टर करंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो इंक्रीज हो रही है बाय 2 del I। m is the slope of this inductor current which is equals to Vn minus V naught divided by L। इसको हम अगले स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। The expression for the inductor voltage during the first subinterval was VL on which is equals to Vn minus V naught। और जनरली हम लिख सकते हैं कि VL on this is equals to L DIL by dt। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि DIL by dt this is equals to Vn minus V naught divided by L। This d by L divided by dt, this is called the slope of the inductor which is represented by m।
अब चूंकि वीन हमारे पास कांस्टेंट है, आउटपुट वोल्टेज इसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, और एल किसी भी बक कन्वर्टर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। इसका मतलब ये है कि स्लोप हमारे पास एक कांस्टेंट है एंड द इंडक्टर करंट चेंजेस विथ एन एसेंशियली कांस्टेंट स्लोप। अब DIL ग्राफ से हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल द चेंज इन इंडक्टर करंट दिस इज 2 del IL। Similarly, during the first sub interval dt this is equals to t on या dt। तो अगर dt की वैल्यू और del IL की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर ले तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। चूंकि बक कन्वर्टर के लिए dt दिस इज इक्वल्स टू dVn, तो इस वजह से V0 की जगह मैंने dVn पुट किया है। यहाँ पे मैंने Vn कॉमन लिया है, तो del IL दिस इज इक्वल्स टू Vn इंटू 1 माइनस डी इंटू dt डिवाइडेड बाई 2L। और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास del IL के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा विच इज इक्वल्स टू V0 t ऑफ डिवाइडेड बाई 2L। दिस del IL इसको हमने नाम दिया था द पीक टू एवरेज रिपल इंडक्टर करंट। Step number 7 to calculate IL max and IL minimum. This IL max, this was the maximum value of the inductor current. This is equals to the DC component of the inductor current plus the peak to average ripple current del IL. For the buck converter, this IL was equals to I0. Similarly, del IL was equals to V0 into T off divided by 2L। या हमारे पास इंडक्टर वोल्टेज के लिए जो एक्सप्रेशन होगा VL ऑन के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट सब इंटरवल, उससे हम सिंपली ये लिख सकते हैं। तो IL की जगह हम I0 पुट कर सकते हैं और del IL की जगह हम इन दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। सिमिलरली IL मिनिमम दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल IL माइनस del IL। Step number 8 to calculate the critical value of the inductance L critical। इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहे या इसको हम कैलकुलेट करना चाहे तो IL मिनिमम को हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। एज IL मिनिमम दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल IL माइनस del IL। IL की जगह मैं I0 पुट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर द बक कन्वर्टर दिस IL इक्वल्स टू I0। del IL की जगह ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं, फिर I0 की जगह मैं लिख सकता हूँ V0 डिवाइडेड बाई R माइनस V0 इंटू टी ऑफ डिवाइडेड बाई 2L इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे L विल बी इक्वल्स टू R इंटू टी ऑफ डिवाइडेड बाई 2। This is the critical value of inductance which will ensure that the converter is operating in the continuous conduction mode. Next is step number 9 to calculate the source current. Source current को हम INC भी represent कर सकते हैं या ISC भी represent कर सकते हैं। किसी भी DC-DC कन्वर्टर में अगर हम सोर्स करंट कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास सिंपल रूल है, पुट द इनपुट पावर। Input power is the product of the input voltage and input current. This is equals to the output power which is the product of the output voltage and output current. तो यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इनपुट करंट दिस इज इक्वल्स टू V0 इंटू I0 डिवाइडेड बाई Vn, और इस रिलेशन से मैं सोर्स या इनपुट करंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ।